Hello everyone. Today we discuss about the contribution of Eratosthenes. He is known as the father of geography because he was the first who coined the world geography. He defined geography as a study of the earth as the home of man. He was the first scientific geographer who upheld the mathematical tradition which was introduced by Thales much early in the 6th and 7th century. He also succeeded in calculating the circumference of the earth. He also succeeded in measure the distance between the sun and moon from the earth. He used Zanmon instrument which was invented by Alexander. The Zanmon instrument which made it possible to make a variety of observation regarding the relative position of the celestial bodies, varying season to season position of the moon and shadow. The Eratosthenes used this instrument to observe the position of sun at the time of summer solstice. One observation was done near the CNA and second observation जो सेट है उन्होंने क्रिएट किया था एट दी एलेक्सेंड्रिया एलेक्सेंड्रिया बोथ वर्ड लाई इन द इजिप्ट जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशनल सेट है वो उन्होंने सीएन में किया था। जो सेकंड ऑब्जर्वेशनल सेट है वो एलेक्स एंड्रिया में किया था। जो सीएन है वहाँ पर आपको एक देयर वाज अ डीप वेल एंड एट द बॉटम ऑफ द वेल एट द टाइम ऑफ समर सॉलिस्टाइल जो इमेज है सन की वॉज रिफ्लेक्टेड इन द वाटर है ना। जो स्ट्रेंज ऑकरेंस यूज टू अट्रैक्ट मैनी टूरिस्ट इन एंशियंट टाइम्स। ओके, क्योंकि जो सन है वो डायरेक्टली ओवरहेड होता था वाटर में, तो इससे टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है वो यहाँ पर डेवलप हो गया था। तो अलेक्जेंड्रिया के जब हम बात करते तो इसके आउटसाइड में आपको एक म्यूजियम देखने को मिलेगा। उसके यहाँ पर आपको एक म्यूजियम देखने को मिल रहा है। इस म्यूजियम के आउटसाइड आपको जो आपने म्यूजियम देखा था उसके बाद आपको एक ऐसा पिलर टाइप देखने को मिलेगा जिसे ऑब्लिस्क बोलते हैं। इसमें उन्होंने इसको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ किया था जिसमें उन्होंने मेज़र किया था मेज़र द लेंथ ऑफ द शेडो एट द टाइम ऑफ समर सॉलिस्टाइस। ओके, ही वॉज able to measure the angle between the vertical oblique and the rays of the sun. Okay, with these two separate observation of the position of sun at the time of summer solstice in mind, Eratosthenes proceeded with the famous theorem of Thales that when diagonal line crosses when diagonal line crosses two parallel lines, तो उनके बीच का जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये एक फेमस थ्योरम दी थी थेल्स ने जिसे उन्होंने यूज किया था। देन जो एंगल बिटवीन द सन रेज एंड वर्टिकल ऑब्लिक एट द अलेक्जेंड्रिया मस्ट बी द सेम as the opposite angle at the center of the earth. He also succeeds in calculating the circumference of the earth. He measured the distance between 2.1 from here by the road. He found that the distance between these 2 points is 500 miles. He calculate 500 miles to into 50 and the result he finds is 25,000 miles. He considered this is the whole circumference of the earth. He also succeeds in finding the near value of the total circumference of the earth. Okay, he also succeeds or we can say attempted to determine the distance of the sun and moon from the earth. So what we studied that he is known as the father of geography, study of the earth as the home of man. He defined the definition. He succeeds in calculating the circumference of the earth. ही इज़ द फर्स्ट साइंटिफिक जोग्राफर जिन्होंने अपहेल्ड किया था मैथमेटिकल ट्रेडिशन इन जोग्राफी जिसे थेल्स ने इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने जो जैनमॉन इंस्ट्रूमेंट है इसको यूज़ किया था और इसके लिए उन्होंने 2 ऑब्जर्वेशनल सेट्स को भी प्रिपेयर किया था ताकि वो जो पोजीशन है सन की एट द टाइम ऑफ समर सॉलिस्टिस उसको ऑब्जर्व कर सके। फर्स्ट वन इज शियन जो
प्रेजेंटली जिसे हम S1 के नाम से आते हैं, सेकेंडली आउटसाइड द म्यूजियम इन अलेक्जेंड्रिया, है ना। इन्होंने वॉल अर्थ की जो सर्कमफेरेंस है उसको मेजर किया था और वो निकला था 25,000 माइल्स। ओके, एक्चुअली सर्कमफेरेंस मेजर थ्रू द पोल्स इज 24,860 माइल। एरिस्टोस्थेनीज ने डिस्टेंस मेजर कर दी सन एंड मून की फ्रॉम द अर्थ। ओके, ही प्रोड्यूस बुक्स ऑन दी हैबिटेबल पार्ट और ईकॉम। इन्होंने बुक्स को प्रोड्यूस किया था ऑन दी हैबिटेबल पार्ट और ईकॉम। ईकॉम जो टर्म है वो एरिस्टोटल ने बताई थी या कोइन करी थी। इसमें वो हैबिटेबल पार्ट को कंसिडर करते थे। उनका ये मानना था जो इक्वेटर है वहाँ पर जो हैबिटेबल एरिया है वो ज़ीरो है, क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को मिलता है। ठीक है, इन्होंने जो एरिस्टोस्थेनीज से इन्होंने बुक प्रोड्यूस करके ऑन दी हैबिटेबल पार्ट और इकोम ऑफ द अर्थ, एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ द बुक्स ही वॉज वेरी मच रिलाइड ऑन द अजम्पशंस एंड अकाउंट ऑफ द एरिस्टोटल एंड पाइथस। जब वो अपनी बुक्स प्रिपेयर करते तो वो बहुत ज़्यादा रियलाइड कर रहे थे कि इनके अजम्पशंस और अकाउंट्स पे, एरिस्टोटल एंड पाइथस के अकाउंट्स और अजम्पशंस पे। और इनका जो एक्यूम है वो एक्सटेंडेड करता था थ्यूल, जो कि आपको ग्रीनलैंड में देखने को मिलता है, जो आर्कटिक सर्कल के नियर है, टू द नॉर्थ ऑफ द टेम्प्रोबेन जो आपको प्रेजेंट डे श्रीलंका है ना, वो वाले जो ग्रुप्स जो वो आइलैंड है उसको ग्रीक्स जो है वो टेम्प्रोबेन के मतलब पुकारते थे या वो अनाउंस करते थे या फिर उन्हें वो कंसीडर करते थे, जो इंडियन ओशन में साउथ में देखने को मिलता है। एंड ये आपका नॉर्थ इकोम एक्सटेंडेड हो गया। अब ईस्ट इकोम एक्सटेंडेड बता रहे फ्रॉम द अटलांटिक ओशन टू द बे ऑफ बंगाल विच ही थॉट टू बी द एक्सट्रीम लिमिट ऑफ द हैबिटेबल पार्ट। के बाद में ही प्रिपेयर्ड ए वर्ल्ड मैप इन विच ही मेड यूज ऑफ ए फ्रेम ऑफ नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट लाइन बट नॉट स्पेस रेगुलरली। ही यूज द मेरिडियन ऑफ Alexandria, extending its southern and through Chian and northward through Rhodes and Byzantium as the prime meridian. ओके, इन्होंने नॉर्थ जो साउथ लाइन्स और ईस्ट वेस्ट लाइन ड्रॉ कर दी, बट वो स्पेस नहीं थी रेगुलरली। ओके, है ना। इन्होंने मेरिडियन को ड्रॉ किया था अलेक्जेंड्रिया, जो अभी आपने देखा वहाँ से यानी उन्होंने ऐसे ड्रॉ किया था सीएन, जैसे यहाँ पर सीएन है तो यहाँ से अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया से रोडेस, रोडेस से आपको बेजिडियम, उनका प्राइम मेरिडियन ऐसे ड्रॉ था। ठीक है, इसको अच्छे से हम मैप पे भी देखेंगे। ओके, एरिस्टोस्थेनीज के जो कार्टोग्राफिकल जो वर्क है, जो एरिस्टोस्थेनीज के कार्टोग्राफिकल जो वर्क है वो लेटर डेवलप करे गए थे उनके जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनके सक्सीजर्स हैं इन द म्यूजियम ऑफ एलेक्जेंड्रिया। अब हम उनके दो तीन जो उनका एक तो वर्ल्ड मैप देख लेते, एक उनका जो एक्यूम था जो एक्सटेंडेड होता था थूल नियर से टेम्प्रोबिन, जो उनकी नॉर्दर्न लिमिट थी, उसको अच्छे से मैप पे देख लेते ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमें, हाँ एक सेकेंड, हाँ ये उनका वर्ल्ड मैप था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो सबसे ज़्यादा जो हैबिटेबल या मेजर डिवीज़न जो हैबिटेबल पार्ट जो उन्होंने एक्सेप्ट किया था वो था आपका यूरोप का, एशिया एंड लीबिया वाला जो पार्ट था, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा हैबिटेबल पोर्शन देखने को मिलता है। ठीक है, इनका जो एक्यूम था वो एक्सटेंडेड था, इनका जो आपका एक्यूम था वो एक्सटेंडेड था थुले से आपको यहाँ पर टेप्रोबिन देखने को मिलेगा यहाँ तक। यहाँ पर आपको अटलांटिक जो सर्कल, अटलांटिक जो ओशन है वहाँ से आपको बे ऑफ बंगाल है वहाँ तक जो इनकी ईस्टर्न लिमिट देखने को मिलेगी किसकी, हैबिटेबल पार्ट की। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इन्होंने वर्ल्ड मैप को प्रिपेयर किया था, इन्होंने मेरिडियन को ड्रॉ करती, इनकी जो प्राइम मेरिडियन थी वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है, तो वो अलेक्जेंड्रिया सीने से अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया से आपको रोडेस, देखो यहाँ पर देखने को मिला है, रोडेस से आपके ब्रेजिटम। ओके, ये इनकी प्राइम मेरिडियन थी, एक बार आप इसको अच्छे से क्लियर कर लेना। ओके, ये इनकी प्राइम मेरिडियन थी जो यहाँ पर ड्रॉ देखने को मिल रही है। उसके बाद इन्होंने कहा था कि जो इन्होंने लैटिट्यूड को माना था वो पिलर ऑफ
हैरिक्यूल्स को माना था, जो इन्होंने माना था बिल्कुल पास होता है आपके रॉडेस से। ओके, इन्होंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को इसलिए यूज़ किया था ताकि ये लोकेट कर सके प्लेसेस और मेजर कर सके डिस्टेंस। ओके, इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे जो लॉन्गिट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड है वो आपको रेगुलरली स्पेस देखते हुए नहीं मिल रहे हैं ना। तो इनके जो भी कार्टोग्राफिकल जो वर्क्स थे वो आपको लेटर डेवलप देखने को मिलेंगे उनके जो स्टूडेंट, जो उनके सक्सीजर्स थे, उनके द्वारा जो म्यूज़ियम ऑफ अलेक्जेंड्रिया में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट वी स्टडीड इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एरिथोस्थनीज। इनका जो एक्यूम है वो एक्सटेंडेड होता था थुले से आपके टेम्प्रोविन और अटलांटिक ओशन से आपके बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में। ओके, बे ऑफ बंगाल यहीं पे है। उसके बाद इन्होंने प्राइम मेरिडियन ड्रॉ किया। उसके बाद इनका मानना था कि जो सबसे ज़्यादा जो हैबिटेबल पार्ट है जो एक्सटेंड होता है वो यूरोप, लिबिया एंड एशिया वाला जो रीजन है वहाँ पर। ओके, ये था सब। थैंक यू सो मच।